Now, how does tarot help us? What are the kinds of things we can do with tarot learning? It's an incredible source of making predictions. Of course, I told you prediction, it's a predictive tool. It's a predictive tool. And it is a reflection of our own manosthiti or our psychological state. It reflects our desires, our dilemmas very, very beautifully. The best part is it gives you very clear guidance. Okay, tarot is very clear. It's very quick. It's very clear. These are the two fundamental advantages of it. Another thing is you do not require date of birth when you're doing tarot card reading for somebody. So if you don't have that information, for example, one client is coming to you, they have given you their complete birth data. You make their horoscope, you do their analysis, everything. Now she says that I'm having some problems with my boss in the office. Okay, so I want to know about my coming relationship with him in the next 6 months. What do? You have no access to the birth details of the boss. Except for the name, you know nothing about that boss. Even that girl doesn't know. That lady has no idea. She says, I don't know. What do you do then? Tarot comes to your rescue. Because tarot can also give answers to you about other people in your client's life. Client, when I talk about the term client, it is it's like having multiple meanings. When I say client, it means client or the querist. Okay, querist, whoever is asked you the query. So all the people who are connected with your querist in their mind or in their life, you instantly gain access to them. And that is why, with due permission from the archangels, you have to take permission from archangels before doing any question like this. You can ask and you can also answer what is going on in the boss's mind and how the relationship will be in the coming period that she has spoken about. Because it is her life getting influenced. Please remember, if your clients or your querist's life is getting influenced by that person, then you are having the permission, the divine permission to ask questions about that other person. If she wants to know, oh, you know, recently my neighbor has moved to another locality. She used to be my neighbor at one time. We were very good friends. She has gone to another locality. Can you tell me how she's liking her new house? Notice, it's still a question of a neighbor who used to be her friend. Does it influence her coming life? Is there any influence now because that neighbor has gone away? So it's not going to directly influence her future life. This is just curiosity. सिर्फ gossip है, curiosity है. Okay? She just wants to know कैसा चल रहा है उसका. So such questions you are not having permission to answer. Differentiation है. Okay? अगर उनकी physical, mental या financial future से connected है question, then only you have permission to ask. Otherwise, please skip it. Say no. Tarot cannot answer questions about that. Be very clear in what you can answer, what you cannot answer. क्योंकि टैरो का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है टैरो एथिक्स. मैंने बताया एक तरीके से भगवान की देन होती है इसमें. तो भगवान आपको सिद्धि देते हैं ये, तभी आपको गुड टैरो रीडर्स मिलेंगे, वेरी गुड टैरो रीडर्स मिलेंगे और एक्सेलेंट टैरो रीडर्स मिलेंगे. ये कैसे होती है डिफरेंशिएशन? ये सिद्धि के बेसिस पे होती है. आपको कितनी ब्लेसिंग प्राप्त है क्वेश्चंस आंसर करने की, आपको कितनी परमिशंस प्राप्त है questions answer karne ki. Please follow the ethics. I'll be talking in my course a lot about these ethical practices. There are some questions you should not answer. There are some questions you should ask yourself and try to answer. Okay? So quick guidance, clear guidance, anything about decision making. It's a very, very good decision making tool. Okay? Very, very good decision making tool. Any kind of dilemma you're having in your mind about a proper decision, okay? That it could be like, I want to invest my money, should I do it in this particular business or this particular business? It will give you the answer. I want to make application for a foreign university. What are my chances of success in university A versus university B? These are choices. So we have a special spread called a choice spread in order to deal with this.
It gives you a plan of action. It tells you exactly when to do things, how to do things. Okay. I want to get into a business collaboration with my friend. When should I do it? Tarot will answer it for you. It will even tell you what kind of relationship you will have with that person as business partners. It will tell you all that. Even the period will be also told by the cards, ma'am. Vinayji, see, I'll tell you something. In tarot, the traditional knowledge of tarot does not have a concept of timing. In the traditional books, we do not have any kind of sutras laid down for timing. हमारे ऊपर कोई information हमें नहीं मिली हुई. लेकिन as a consultant, as a practitioner, we have perfected our own tools of doing the timing question. Okay, so I'll be dealing with the timing also, and yes, you are able to answer your question. Yes, you are able to pinpoint the timing of a particular event. Okay, you are able to do that, provided you are intelligent enough to ask the right question. Again, I'll come back to that. Be intelligent enough. Why I'm saying that again and again, guys, is because this is Prashna Shastra. Shastra means a body of sacred knowledge. Shastras. Shastra hai ye, itna bada body hai. और पहला क्वेश्चन, पहला क्या आया वर्ड? प्रश्न. तो अगर आपने करेक्ट प्रश्न, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है, which includes the time frame. If you're asking, I want to get into a business collaboration in the next 3 months. Will it happen? अभी क्या हुआ? Your question was intelligent because आपने 3 months का question उसी के अंदर डाल दिया. So if you include the time element in your question framing itself, you can get very, very accurate answers. Don't ask open-ended questions. Ask very, very specific time-bound questions. You will get your answer. Ma'am, if we have the date of birth of the client and then with the tarot and plus we can see the pinnacle and everything, we can just correlate those things also. You try and do that, Meera, because that is going to be a question of research. It works for certain people. It does not work for certain people. Because as I told you, it is a matter of siddhi. So we cannot simply say that 2 plus 2 will always be equal to 4. But you can definitely, since you have knowledge of more than one discipline, you can definitely try and correlate. But it will not always be synonymous with each other. Remember that. Oh. Because tarot is an independent discipline. Numerology is an independent discipline. कुछ चीजें मिल सकती हैं कहीं ना कहीं पर, maybe few tangentially, but एक से answers नहीं आते हैं हमेशा. ठीक है? Psychology is a node. हाँ जी. Psychological जो method है वो इसमें involved है. Psychological method? Meaning? Psycho, you know. साइको एनालिसिस करेंगे. हाँ हाँ, साइको एनालिसिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. देन करियर्स के लिए आपकी करियर ग्रोथ कैसी होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी होगी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. हेल्थ और वेलनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल, which means self assessment. You can do your own assessment also if you are needing some psychological answers. And what happens is once you start doing self analysis, for example, I've been feeling sad for the last couple of weeks. You do a self analysis spread, okay, for yourself. You find out the reasons. Maybe there are reasons even which your conscious mind is not understanding. But tarot will tell you what is the cause of your sadness. Actually, क्या reason है? तो आप अपनी इमोशनल बैलेंसिंग के लिए टैरो को यूज कर सकते हो. आप किसी और के मन में क्या चल रहा है उनकी असेसमेंट करनी है आपको, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो. आई टोल्ड यू ना द रूल अबाउट परमिशंस इज देयर. अगर परमिशन है आपको उनका करने की असेसमेंट तो बहुत अच्छे आपको आंसर्स मिलेंगे. एंड इन अ वे इट्स आल्सो एडिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ because you are becoming you are coming more into the mode of awareness. The more you know, the more you understand yourself, the more you understand the other people in your life, it aids your spiritual growth now. आप ज्यादा knowledge की phase में आ जाते हो. Then another thing is you can also do why an event is not happening, because this is called the horseshoe spread. This will do in the horseshoe spread. Horseshoe spread में हमें क्या होता है? What is the obstacle if a work is not happening? And how to make it happen, that is the facilitator. Okay, how to make it happen more easily. Then you can do compatibility matching also. You can do compatibility matching. Matching through planetary matching or planetary matchmaking we do in the master's level. This is basically a compatibility match between any two persons. Okay, this we do. And primarily it's a self-guidance tool.
सेल्फ गाइडेंस का बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप बाकी लोगों के साथ नहीं कर सकते। मोरालिटी रीजंस हो सकते हैं, आपके अपने प्रिवेसी रीजंस हो सकते हैं, आप नहीं बताना चाहते किसी को भी अपनी कोई प्लान है, कोई मन की बात है, आपको अपनी कोई क्लैरिफिकेशन करनी है, आपको अपने कोई गिल्ट इश्यूज है, कुछ भी हो सकता है। इंसान की तो मन बहुत गहरा होता है। सो सेल्फ गाइडेंस के लिए आप टैरो को यूज करो, बिकॉज ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है ना, आपकी बात कहीं बाहर नहीं निकलेगी, वो टैरो के पत्तों में ही सिमट के रह जाएगी। और दूसरी चीज, लाइफ कोच, आपके और हायर फोर्स के बीच में एक स्ट्रेट वे आपको हॉटलाइन मिली हुई। मेरे लिए, मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करती हूँ टैरो को, इट्स अ डायरेक्ट हॉटलाइन विच गॉड हैज bestowed upon you. If you are getting mastery of card means God wants you to have a direct dialogue with him. अब गॉड की फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ी सी लो रह जाती है, टाइम लगेगा ना, तभी तो हम सोल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। तो टैरो के थ्रू आप धीरे धीरे ऊपर पहुंचोगे, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी राइज होगी। तो ये आपके बीच का एक डायलॉग बॉक्स रहता है, लाइफ कोच। एंड टैरो कार्ड्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये बात आप लोग अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लो, टैरो कार्ड्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। आपने क्वेश्चन आपके माइंड में आया और आपने सेटल्ड और बैलेंस्ड माइंड के साथ अगर अपना कार्ड्स ओपन करे, जो भी कार्ड्स आए ना उनको लिख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमें कार्ड्स का मीनिंग इमीडिएटली समझ में आ जाता है, मतलब इमीडिएटली हमें पता लग जाता है आंसर क्या है। कई बार क्या होता है कि आप पूरी सिचुएशन से अवेयर नहीं होते, तो कार्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, आपके मन में कुछ और अजम्पशंस हैं चीजों को लेके, आप कुछ और, आपका सोचने का तरीका है। तो कई बार कार्ड्स विल नॉट मेक सेंस टू यू इन द इमीडिएट टाइम, but please write down, note down those cards, because they are indicating a future which is yet to unfold. That is why it's called prediction ना। prediction में बहुत बारी हमें विश्वास नहीं होता। मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ, I am totally in love with a person and I see no obstruction to our marriage, yet I go to a tarot reader and I ask, you know, we have been in this relationship and are we going to have a happy married life together? Okay, and she pulls up your cards. She says, I'm sorry to see, but I don't see this marriage happening between the two of you. आपकी तो शादी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर, वो किसी और से शादी कर रहा है, वो जा रहा है यहाँ से। Tarot cards will throw up answers like this, that he's leaving the country and he is going to end up marrying a foreigner, or he will marry somewhere outside country. You are totally baffled because आपका जो belief system है उससे तो बिल्कुल ही अलग हो गई ना। आप कहोगे नहीं नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, I don't believe this reading, I don't believe you. There might be situations like this also, because reading is totally different than what the person is hoping for. Ma'am, But can I tarot ask one cards never lie. Tarot cards never lie. अगर आपने sincerely उसके लिए cards pull किए हैं, actually they are guiding you to the point कि this marriage is not meant to be, and this girl should withdraw from this relationship at this moment itself. She should start mentally. She should start withdrawing from the situation. ठीक है? Ma'am, That's supposing why it's called guidance, Meera. That's why it's called guidance. It's not just prediction. It's guidance. पर मैम एक चीज पूछनी थी, सपोजिंगली अगर वो क्लाइंट आके बोलते हैं कि ओके आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप प्लीज दोबारा पूछ लो, यू नो ह्यूमन हाँ, नेचर, हाँ, क्यूरियोसिटी, हाँ, तो इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? हाँ, तो उनकी प्राइमरी रीडिंग रखो अपने पास। और एक चीज और यहाँ पे आपको टिप दूंगी कि कोई भी क्लाइंट्स आता है ना, उसका जैसे साइकाइट्रिस्ट को आपने देखा होगा या साइकोथेरेपिस्ट, दे मेंटेन अ लॉग बुक, दे मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द सेशंस। तो आप लोग भी ना ट्राई कीजिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली या टैरो क्लाइंट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, they will keep coming in touch with you, they हमेशा they come back to the same reader mostly if they like you. So start maintaining a logbook for them, write the first date and write the cards which have come for them. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है क्योंकि कार्ड्स तो आपको मीनिंग्स पता ही है, बट आपने 1 या 2 लाइंस में क्या उसको रीडिंग दिया उसका सिनॉप्सिस लिख लो। then after 15 days, 20 days, 1 month the person might return. Now please understand, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। If they ask you to do a rereading, you should do a rereading. There is no harm in that. Try to avoid asking the same questions for the next 24 hours at least. कोई भी क्वेश्चन को, कई बार होता है ना, जैसे हम लोग कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई रिजल्ट होता है या कुछ होता है, तो लोग आपसे पूछते हैं आफ्टर every 2-3 hours, लेट मी पुल आउट अ कार्ड. Try to stay away from that. Okay.
24 आवर्स के बाद, बिकॉज प्लैनेट्स जो होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो आपको जो भी चेंज इन सिचुएशन है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी, नहीं तो वही आंसर आएगा। कार्ड दोबारा निकालना पड़ेगा, हाँ, कार्ड रीडिंग दोबारा कर लीजिए। उसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई कह रहे हैं आपसे री रीडिंग के लिए, उनका क्वेश्चन है अगर कोई दोबारा रीडिंग के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है, तब निकालिए। एक क्वेश्चन था मैडम, जैसे किसी का कार्ड निकाला मैंने, आप ये जी। कहना चाह रही हैं कि कार्ड निकाला और मैंने उसका वो लिख लिया नंबर, अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर इमीडिएटली, तो उस कार्ड का लिखा हुआ जो मैंने उसको बाद में प्रिडिक्ट करके उसको बता सकते हैं बाद में हाँ, बता आफ्टर? सकते हैं, वही बिल्कुल कहना चाह बता रही है, सकते वही हैं। कहना हाँ, चाह रहे हैं। नहीं, ये पूछ रही हैं कि आज की डेट में मैंने एक रीडिंग करी, लेकिन उनको वो रीडिंग से सेटिस्फाई, मतलब इन द सेंस वो जो सुनना चाह रही थी वो नहीं था। उनको हाँ लगता मतलब है कि कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी शादी वाला दिया, हाँ सपोज इस केस के अंदर इस लड़की को बिल्कुल डिसबिलीफ हो गया, कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ही इज ऑलरेडी प्रपोज टू मी, आप कैसे बोल रहे हो ये बात, ठीक है। लेकिन बिकॉज रीडिंग निकली है, कार्ड्स उसके सामने निकले हैं, वो टोटली उस चीज को forget नहीं कर पाएगी, it will stay with her. Please remember your हाँ, सही cards कह रहे and हो, what you right, say, उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाते हैं, कोई भूलता नहीं है अपनी टैरो रीडिंग, कोई नहीं भूलता। मैम इट्स लाइक फर्स्ट लव, जो पहला रीडिंग निकला है। फर्स्ट लव, उसकी उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इम्प्रिंट छोड़ के जाती है आपके दिल के ऊपर। वो क्या Right. करेगी, वो 2-3 दिन तक बेचैन रहेगी, अब उसको डाउट तो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने उसको इतना जबरदस्त आंसर दे दिया, अब वो शी विल स्टार्ट डाउटिंग। नाउ सपोज दैट गाय डजंट कॉल फॉर 6-7 आवर्स, वो तो ही डजंट केयर अबाउट मी, ही डजंट वांट टू टच बेस विद मी, ये है वो है। अब वो हर चीज में दूसरी चीज देखना शुरू करेगी। इन अ वे इट इज हेल्दी, because she will now start seeing the patterns or the signals that the universe is giving her. right. Then she will realize, अभी क्या था, वो इतनी ज्यादा खुद की फीलिंग्स में खोई भी थी कि वो उसका निग्लेक्ट भी नहीं देख पा रही थी, या उसकी नॉन कम्युनिकेशन भी नहीं देख पा रही थी, माफ कर रही थी उसको। अब उसको ये बात समझ में आ गई। अब अगर वो 2-3 दिन बाद आपके पास फिर आती है, कहती है मैम वैसे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट ही विल नॉट प्रपोज टू मी, या ही डज नॉट लव मी, बट कैन यू डू अ री रीडिंग फॉर मी, आई जस्ट वांट टू रीकंफर्म। ओके, सो इट्स लाइक अ लैब टेस्ट। जैसे होता है ना, कई बार आपकी कोई रिपोर्ट गलत आ जाती है तो आप कुछ दिन बाद दोबारा से टेस्ट लेते हो, भाई मेरी Right. शुगर की वैल्यू सच में ऐसी है क्या, Right. कोई रैंडम तो नहीं आ गई। सो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, लेकिन प्लीज नेवर फॉरगेट दैट फर्स्ट रीडिंग that लॉग gave you the first signal. लॉग बना के रखते हैं। we should keep the base of the first reading, उसके बाद जो मेरा है वो बेसिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर है, वो चेंज नहीं होगा, उसके बिहाफ पे सारी चीजें बाकी आपकी अनफोल्ड करेंगी। ओके, ठीक है। सो सेकंड या थर्ड डे अगर वो दोबारा आती है तो आप दोबारा कार्ड्स निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ऑनलाइन को थोड़ा सा रिफ्रेज करिएगा, वही वाले क्वेश्चन को रिपीट मत करिएगा this time. Now maybe the girl can ask that I think my boyfriend wants to marry me, will he propose to me in the coming 3 months? उसका क्वेश्चन चेंज हो गया। या will he talk to me about will he talk about me to his parents? क्या वो मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करने ले जाएगा? क्वेश्चन चेंज हो गया, उसको थोड़ा सा डाउट आ गया, उसमें एक्शन आ गया, देख रहे हो आप, प्लान ऑफ एक्शन बनना शुरू हो गया उस लड़की के माइंड में। अभी तक वो बिल्कुल खुले मन से उसको चाह रही थी। तो जैसे जैसे टैरो की रीडिंग, तो इनको कहते हैं हम लोग रिपीटेड रीडिंग्स, रिव्यू रीडिंग्स। अच्छा, तो ये रिव्यू रीडिंग्स आप फुल्ली अलाउड हैं करना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन भी मैडम ये एडवाइस हम करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा है थोड़ा चेंज करके पूछिए, कि हम लोग सेम क्वेश्चंस वी कांट रिपीट इट, तो ये हाँ, हम उसको बिल्कुल, ये आप बताओगे विनय जी, लेकिन जो अर्ज है क्वेश्चन करने की वो उसकी तरफ से आनी चाहिए, राइट, क्योंकि Correct. प्रश्न उसके मन में आना चाहिए कि मेरे को इस सिचुएशन को दोबारा से रिव्यू करना है। ठीक है, सेम तो लाइक अंडरस्टैंड, इच्छा उसके मन से आनी चाहिए। क्वेश्चन यू हैव फुल, इनफैक्ट यू शुड, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प हर रीफ्रेज द क्वेश्चन बेटर। वी शुड नॉट क्रिएट द मैडम क्वेश्चन ये तो सेम चीज हुई ना जो केपी में जिस तरह से हो रही, या जो ये जो सेम सेम है ना, जब तक उनके दिमाग में वो मैंने क्वेश्चन इसीलिए नहीं तो है। एनालॉजी दी है, क्योंकि आपने केपी को बोला तो मैंने इसलिए एनालॉजी दी है, बाकी सब लोग यहाँ पे केपी से परिचित नहीं है। ठीक है, बट Because एक I- एक एक सेकंड मैं हाँ, ये कहना बोलिए। चाह रहा था कि ऑनलाइन भी पुलिंग हो जाती है कार्ड्स की, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, सर ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया गया, वो कह रहा है कि मेरे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उससे ऑनलाइन सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं ऑनलाइन जैसे सेशंस, नहीं, जैसे ऑनलाइन सेशन बात नहीं कर रहा, जैसे मैं जैसे सीख गया हूँ, है ना, हाँ तो कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट मतलब फेसलेस है, यानी कि वो फोन पे बात कर रहा है और मेरे उसके बिहाफ पे हम लेफ्ट हैंड से करके अपना कार्ड हाँ पुल हाँ करके, हाँ, और हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। उसको फिजिकली नहीं टच नहीं, देने की जरूरत नहीं है ना। इनको ऑनलाइन सेशंस कहा जाता है, यही होते हैं सर, ऑनलाइन सेशंस होते हैं ये, दीज आर ऑनलाइन सेशंस, एंड दीज डेज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डूइंग अ
रीडिंग। मतलब उसको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, कार्ड स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं नहीं। नहीं नहीं, और अगर वो accuracy का चाहे तो आपके साथ ऑनलाइन फेस टू फेस कॉल पे या जूम सेशन पे आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। अच्छा, अगर वो इंसिस्ट करें कि नहीं आप हमें कार्ड दिखाओ या आप हमारे सामने बैठ के रीडिंग करो, तो आपको वो करना पड़ेगा, पूरी तब आप एक्यूरेसी आती है कीजिए। मैडम, पूरी हाँ एक्यूरेसी जी, आती है, पूरी एक्यूरेसी आती है मैडम उस केस हाँ, में। अगर आप करोगे, सिंसियरली करोगे और आपकी कार्ड्स की वो है, यही तो आपको चेक करना है अब थ्रू आउट हाँ, द वो जर्नी कि दैट डजंट आपकी मैटर। कितनी पकड़ है राइट ना। राइट राइट। बट मोस्टली या यू आर आस्किंग कि ऑनलाइन सेशंस में एक्यूरेसी आती है कि नहीं? हाँ राइट राइट, दैट है। 99.9%। ओके, एंड तो ये मैं ऑलवेज पकड़ इन के टैरो का एक्यूरेसी रेट है ही 99.9%। वेरी नाइस वेरी नाइस। ह्यूमन इसमें भी मैम इतनी, हाँ यस आज्ञा। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर जैसे कोई पर्सन हमसे सेकंड टाइम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम उसे यही बोलना है कि आप रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछोगे? आपके पास कोई सिचुएशन है ऐसी जो आप पूछ कह रहे हो ये वाली? जैसे मैम आपने बोला कि एक गर्ल जो मैरी के लिए गई थी, उसने मतलब हम जब वो नेक्स्ट टाइम हमें कॉल करेगी तो हम उससे पहले उससे यही बोलेंगे कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करना है। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आप ओके। अपने क्लाइंट को फ्रीडम दोगे कि वो किस तरीके से उस सिचुएशन के बारे में क्लाइंट ही आपसे चला बात जाएगा, करना वो चाहते हैं। दोबारा आएगा ही। ठीक है, आपने कुछ नहीं बोलना। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर एज अ टैरो रीडर। Right. ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइंट के मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या उधेड़ बुन चल रही है, वो किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सब उनपे छोड़ दीजिए। हो चलिए सकता है मैडम, वो आपसे अपने आगे चलते करियर हैं। के बारे में पहले बात करें और उसके बाद वो वापस अपने रोमांस के टॉपिक के ऊपर आए, तो उसको लेने दीजिए, लीड लेने दीजिए, वो कैसे करना चाहती है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास सारे इनके यूजेस। ओके, तो ये जो आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे, यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ दीज नोट्स। सो स्ट्रेस बस्टर है, ऑफ कोर्स स्ट्रेस रिड्यूसर है, क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल जाता है कि हमारे को कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन चल रही है और आपका आंसर आ जाता है कि आपको आराम से कोर्ट में जस्टिस मिलेगी, आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे राइट्स मिलेंगे, तो आपका स्ट्रेस कितना रिड्यूस हो जाता है, राइट? अच्छा। और अगर आपको पहले राइट ही बता दिया जाता है, आपको पहले ही कह दिया जाता है कि राइट। आपके जो दूसरी वाली पार्टी है वो इस टाइम बदमाशी कर रही है, वो छल करेंगे और कहीं ना कहीं आपको जो मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा। सो यू आर एक्सपेक्टिंग 50%, you will get 20%. That also in a way will reduce your stress, because now you are prepared for the outcome, whether it is good or bad or ugly. देखिए, सारा खेल जो है ना यहाँ है दिमाग में, सारा खेल दुनिया का। अगर आप यहां से कोई चीज इमोशन फील कर रहे हो, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलीव हो क्योंकि आपको आंसर पता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रिलैक्स रहती है, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम रहता है। या ऐसे में आपको ऑलरेडी दूसरी चीजें पता, आपका स्ट्रेस कम हो गया एक बारी में, बिकॉज नाउ यू नो दैट द अदर पर्सन इज गोइंग टू डू सम अनएथिकल थिंग। सो ऐसे में यू विल ऑल्सो ट्राई टू हैव सम अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट टू मीट द सिचुएशन।